السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ خان۔ کھیل کی خبریں لیے میں ہوں آپ کے ساتھ رمیسہ قریشی۔ اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبدالقدیر۔ سب سے پہلے ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دورہ کراچی، وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی نے پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کا دورہ، بحری حدود کی حفاظت کرنے والے پاک بحریہ کے افسران اور جوانوں سے ملاقات۔ وزیر اعظم کی گفتگو پی ٹی وی نیوز پر کچھ دیر میں نشر کی جائے گی۔ پاکستان چین اعلیٰ سطح رابطوں کا تسلسل، نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار 3 روزہ سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچ گئے۔ چین کے اعلیٰ حکام اور پاکستانی سفیر خلیل ہاشمی نے پرتپاک استقبال کیا۔ اعلیٰ چینی قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت ہوگی۔ جنوبی ایشیا کی بدلتی صورتحال اور علاقائی امن و استحکام پر تبادلہ خیال ہوگا۔ دنیا جان چکی پاکستان پر لگائے گئے الزامات لغو اور بے بنیاد تھے۔ بھارت کے خلاف جنگ میں پوری قوم متحد اور عالمی برادری پاکستان کے ساتھ رہی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. پاکستانی امن پسند قوم، بھارت نے اکسایا یا حملہ کیا تو ہمارا رد عمل فوری اور عبرتناک ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارت امریکہ نہیں اور پاکستان افغانستان نہیں۔ بھارت نہ اسرائیل ہے اور نہ پاکستان فلسطین۔ دہشت گردی کی سرپرستی اور حوصلہ افزائی کے پیچھے ہندوتوا ہے۔ مقبوضہ کشمیر یا بھارت کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اس کے ریاستی جبر کا نتیجہ ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا ترک نیوز ایجنسی انادولو کو انٹرویو۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی راولپنڈی میں شہید اسکواڈرن لیڈر عثمان یوسف کے گھر آمد، شہید کے اہل خانہ سے ملاقات، شہید کے درجات کی بلندی کے لیے دعا۔ پاکستان ایئر فورس مادر وطن کی فضائی سرحدوں کی نگہبانی کے لیے چوکس ہے، کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو۔ سیکیورٹی فورسز کے بلوچستان میں بھارت کی پراکسیز کے خلاف آپریشنز، 2 مختلف کارروائیوں میں بھارتی پراکسی بی ایل اے کے 3 دہشت گرد جہنم واصل، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ دہشت گرد معصوم شہریوں کے قتل اور سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم، آئی ایس پی آر۔ بلوچستان میں معصوم اور نہتے شہریوں کے خلاف دہشت گردی کی بھارتی سازش بے نقاب، بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کی ہلاکت۔ وزیر اعظم و صدر مملکت کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، بھارتی مذموم عزائم اور ایجنڈے کے خلاف بروقت کارروائی پر پذیرائی۔ پاکستان میں امن کو نقصان پہنچانے کے مذموم بھارتی عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ پاکستان چین تعاون کے سامنے بھارت بے بس، دفاعی تعاون جنگی برتری میں تبدیل۔ فرانس، برطانیہ اور امریکہ کے بڑے میڈیا اداروں کا چینی ٹیکنالوجی کی برتری اور پاکستان کی عسکری کامیابی کا اعتراف۔ چینی ہتھیاروں نے پاکستان کے ہاتھوں اپنی پہلی بڑی جنگی آزمائش کامیابی سے مکمل کی۔ جدید چینی ٹیکنالوجی سے لیس پاکستانی افواج نے بھارت کی عسکری منصوبہ بندی کو بری طرح ناکام بنایا۔ دی اکانومسٹ۔ چین سے حاصل کردہ ایئر ڈیفنس سسٹمز، ڈرونز اور ہائپرسونک میزائلوں نے پاکستان کو خطے میں تکنیکی برتری دلائی۔ دفاعی ماہرین۔
भारतीय मीडिया का शाहीन मिसाइल से मुतालिक प्रोपेगेंडा हकाइक के मुनाफी। पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल के इस्तेमाल से मुतालिक भारतीय दावे सख्ती से मुस्तरद कर दिए। भारत के झूठे दावे इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा। भारतीय प्रोपेगेंडा ऑपरेशन सिंदूर में नाकामियां छुपाने की कोशिश। पाकिस्तान ने जो हथियार इस्तेमाल किए उसकी तफसील ISPR की प्रेस रिलीज में मौजूद है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम्स की मंजूरी। तमाम अजला में बिल्डिंग बाईलॉज पर पाबंदी यकीनी बनाने की हिदायत। फैसलाबाद के अवाम के लिए मजीद इलेक्ट्रिक गाड़ियां फराहम करने की हिदायत। रावलपिंडी राजा बाजार के अर्बन अपलिफ्टिंग प्लान की मंजूरी। शहरों में मॉडल रिक्शा स्टैंड बनाने का हुक्म। अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी का एहसास ही कामयाबी है। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से कतर के सफीर अली मुबारक ईसा अल खतीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। बाहमी ताउन आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक। तमाम शोबों में कतर के साथ ताउन का फरोग तरजीह। पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई रहा। हम खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के दौरान ट्रैकोमा के खात्मे पर आला एजाज। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल को WHO के डायरेक्टर जनरल ने एजाजी सर्टिफिकेट दिया। वफाकी वजीर के जनेवा में क्यूबा के हम मनसब से मुलाकात। सेहत के निजाम से मुताल्लिक मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ केयर मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सदारत में जुडिशल कमीशन का इजलास। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नामजद। जस्टिस मोहम्मद एजाज सवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से फराइज अंजाम दे रहे थे। मोदी का जंगी जनून उरूज पर तुर्की और आजरबाईजान के ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की हिमायत। भारत सीख पा तिजारती और तालीमी बाइकॉट। भारतीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने तुर्क कपड़ों की फरोख्त बंद कर दी। तुर्क सेब और मार्बल की तिजारत भी मुतासिर। मोदी का जुनूनी एजेंडा तालीमी इदारों पर भी मुसल्लत। तुर्की से तालीमी रवाबित मुनक़ता। भारतीय मीडिया का फेक बयानिया जमी बोस। डैनिश अखबार ने सच्चाई सामने रख दी। डेनमार्क के अखबार पॉलिटिकन ने भारतीय मीडिया के बगैर सबूत फौजी फतवाहत के झूठे दावे बेनकाब कर दिए। भारतीय झूठ आलमी सतह पर रोज रोशन की तरह आया। पाकिस्तान के सफीर शुएब सरवर का डैनिश अखबार के आर्टिकल पर ट्वीट। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की अहमियत कम करने के लिए भारत का बड़ा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने फितनातुल खवारिज के साबिक तर्जुमान की खिदमात हासिल कर ली। मकबूजा कश्मीर के अंदर मजीद 2 दहशतगर्दाना हमलों की मंसूबाबंदी का बेबुनियाद दावा। एहसानुल्लाह एहसान का भारतीय अखबार दी संडे गार्डियन में मजमून सबूत है कि भारत खित्ते का अमन तबाह करने के दर पे है। इंतहा पसंद भारतीय वज़रा और फौज के रिटायर्ड ऑफिसर्स आमने सामने। कर्नल सूफिया कुरैशी पर तनकीद पर साबिक फौजी अफसरों ने मोदी सरकार के वज़रा को आड़े हाथों ले लिया। वजीर विजय शाह और मध्य प्रदेश के नायब वजीर आला फौज के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। फौजी इदारों को सियासी गुलाम बनाना मोदी सरकार का खतरनाक एजेंडा। मोदी की जिद और गुरूर ने भारत को सिफारती और अस्करी महाज पर तनहा कर दिया। दिफाई माहिरीन। भारत में मुसलमान प्रोफेसर को सच सामने लाना महंगा पड़ गया। भारतीय फौज की मीडिया ब्रीफिंग पर सवालात उठाने पर प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार। अल जजीरा के मुताबिक प्रोफेसर ने मुश्तिल हुजूम का निशाना बनने वालों के लिए आवाज उठाने की अपील की थी। बीजेपी की नफरत अंगेज मुहिम का सामना करने वालों के हक में भी आवाज उठाने का मुतालबा किया था। दिफाई माहिरीन के मुताबिक प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी मोदी की बौखलाहट और मुसलमान मुखालिफ पॉलिसियों का सबूत है। मोदी सरकार के जुल्म के सताए सिख बगावत पर उतर आए। मोदी कातिल है। सिख बिरादरी का भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आलमी अदालत के कटहरे में लाने का मुतालबा। नरेंद्र मोदी को फांसी की सजा दिलवाएंगे। मोदी के खिलाफ नेशनल और इंटरनेशनल कोर्ट्स में मुकदमात चलाएंगे भारतीय सिख।
मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के छापों और पकड़ धकड़ का सिलसिला तेज, मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने जंगी जराइम छुपाने की कोशिश कर रहा है। मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम और सियासी नाइंसाफियों के खिलाफ कश्मीरी मुत्तहिद। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई दौरे हुकूमत में करप्शन का महंगा स्कैंडल सामने आ गया। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए की करप्शन पर नैब की कार्रवाई। एबटाबाद में सीएनडब्ल्यू के हेड क्लर्क के घर से बड़ी तादाद में रकम, सोना और महंगी गाड़ियां बरामद। 2 अफराद गिरफ्तार। तफ्तीश का दायरा वसी। मजीद गिरफ्तारियों के लिए नैब के छापे। जारी इस्राएली फोर्सेस के गजा पर वहशियाना हमले। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 46 फलस्तीनी शहीद। नसीरात के स्कूल पर इस्राएली हमलों में मुतअद्दिद बच्चे शहीद। इस्राएली हमलों में मजीद 3 सहाफ़ी भी लुक़मा अजल बन गए। सिहूनी फौज की गजा सरहद की नाकाबंदी, इमदादी सामान और अद्वियात की शदीद किल्लत। रवां हफ्ते गर्मी की लहर जारी रहने की पेशगोई। 24 मई तक बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान। मैदानी इलाकों में चंद मकामात पर तेज हवाएं चलेंगी। महकमा मौसमियात। Just muscles it. It's great form. Oh, that is a big shot. Stays deep, gets it past. रावलपिंडी में पाकिस्तान सुपर लीग का आखिरी ग्रुप मैच, चौकों और छक्कों की बारिश। इस्लामाबाद यूनाइटेड की कराची किंग्स के खिलाफ बैटिंग। एलेक्स हेल्स और साहबजादा फरहान की जानिब से 153 रन का आगाज। हेल्स के 88 और साहबजादा फरहान के 73 रन। मैच के दौरान छाती के सरतान से आगाही का दिन भी मनाया जा रहा है। मुकाबला देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। और इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट, स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने टाइटल जीत लिया। फाइनल में इटली के जानिक सिनर को 7-6 और 6-1 से शिकस्त। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज के साथ। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। हुकूमत पंजाब और कौम पाक अफवाज के गाजियों और शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त।
नाज़रीन, नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं। एयरपोर्ट पर चीन के आला हुक्काम और चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी ने उनका इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने कहा है कि उनका दौरा चीन पाक चीन आला सतह राबतों का तसलसल है। बीजिंग रवानगी से कबल नूर खान एयरबेस पर मीडिया से गुफ्तगू में नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि दौरे में आला चीनी क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं पर बात होगी। तफसील बता रही हैं नमरा सुहेल। नायब वजीर आजम मोहम्मद इसहाक डार चीन का 3 रोजा सरकारी दौरा चीनी वजीर खारजा वांग जी की दावत पर कर रहे हैं। दौरे के दौरान नायब वजीर आजम चीन के वजीर खारजा वांग जी के साथ जनूबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल और अमन और इस्तेहकाम पर बातचीत करेंगे। चीन हमारा बहुत ही करीबी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है और हमारे बायलैटरल ताल्लुकात जो हैं वो इसको कहते हैं आयरन क्लैड ब्रदर और बहुत ही करीबी हैं। वजीर खारजा और दोनों कंट्रीज़ के डेलीगेशंस बैठते हैं एक दूसरे के साथ, उसमें तमाम मामलात को देखा जाता है। तो ये उसी नौयत का दौरा है। इसमें सियासी भी होते हैं, इसमें लोकल भी होगा, रीजनल भी होगा, मल्टीलैटरल भी होगा, ग्लोबल इश्यूज भी होंगी और जो करंट जो हमारा हुआ एक एपिसोड, तो हर चीज़ पे बात होगी। मोहम्मद इसहाक डार ने कहा कि भारत की ब्लेम गेम नाकाम हो चुकी। दुनिया अब जान चुकी है कि पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात बेबुनियाद थे। जो हमारे ऊपर इल्जामात लगाए गए वो चाहे वो 15 मिलिट्री इंस्टॉलेशन में हमला हो 7 की रात को या फिर F-16 के उड़ने हो, सब चीज़ें वो जो थी वो हमने साबित किया दुनिया को पता है कि वो तमाम इल्जामात गलत थे। खुसूसी गुफ्तगू के बाद दफ्तर खारजा के आला हुकाम ने मोहम्मद इसहाक डार को दौरा चीन के लिए नूर खान एयरबेस से रुखसत किया। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, DGISPR अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार है और इस सारी दहशतगर्दी की सरपरस्ती और हौसला अफजाई भारत कर रहा है। DGISPR के तुर्क न्यूज एजेंसी अनादोलो को दिए गए इंटरव्यू की तफसील बता रही हैं फरहाना खान अपनी रिपोर्ट में। डायरेक्टर जनरल ISPR अहमद शरीफ ने खसूसी इंटरव्यू में कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाली BLA ने खुलेआम भारत से फौजी मदद की दरख्वास्त की थी। उनका कहना था कि भारत पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान को मूरद इल्जाम ठहराकर दहशतगर्दी के बहाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। Whereas Pakistan in this region is and I think in the world, it is the biggest victim of terrorism right now. It is crying at the same time that Pakistan has absolutely got nothing to do with Pahalgam. DGISPR ने कहा कि भारत कश्मीर को हल नहीं कर रहा बल्कि जबर से इसे अंदरूनी मसला बनाने की कोशिश कर रहा है। Kashmir is a internationally recognized dispute. There are 3 countries who have a claim on who are involved in Pakistan, India and also China. There are UNSC resolutions. So it has to be solved externally as per the will of the people, as per the United Nations Charter, and that India is trying to internalize. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय तसल्लुत के सामने नहीं झुकेगा। हम अमन पसंद कौम जरूर हैं, लेकिन अगर भारत ने उकसाया तो हमारा रद्द-ए-अमल शदीद होगा। The reality is that India is not USA and Pakistan is not Afghanistan. India is no Israel and Pakistan is no Palestine. The reality is that Pakistan will never be deterred, can never be coerced. We will never bow down to Indian hegemony. We are a peace-loving nation, but we will, if provoked, if coerced, if aggression is done, the retribution will be swift and brutal. There should be no doubt on that. The sooner they understand, it is good for the regional peace as well as for the world peace. DGISPR ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान अपने मुल्क का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखती है और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में भी पाकिस्तान ने अपनी बरतरी साबित कर दी है। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।
सरबरा पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर गए और अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया और फातह खानी की। सरबरा पाक फिजाइया ने शहीद उस्मान यूसुफ को जबरदस्त खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि हमारे शोहदा की खिदमात और कुर्बानियां हमेशा याद रखी जाएंगी। एयर चीफ मार्शल ने कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल रावलपिंडी में जख्मी जवानों और शहरियों की भी इयादत की और उनके गैर मुतजलजल हौसले को सराहा। सरबरा पाक फिजाइया ने कहा कि फिजाई सरहदों की निगहबानी के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस ने 17 और 18 मई को बलूचिस्तान में खुफिया इत्तला पर 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान भारत के हिमायत याफ्ता दहशतगर्द गिरोह BLF के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। खुफिया मालूमात की बुनियाद पर जिला आवरान के इलाके गिशकोर में एक ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द यूनस मारा गया और 2 दहशतगर्द जख्मी हुए जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फोर्सेस ने दूसरी कार्रवाई जिला केच के शहर तुर्बत में की और 2 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों गिरोह के सरगना सबरुल्ला और दहशतगर्द अमजद उर्फ बिच्छू को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की भारतीय कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द तंजीम BLF के 3 दहशतगर्दों को हलाक और 2 को गिरफ्तार करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। वजीर आजम ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने पेशावराना महारत और भारतीय एजेंडे के खिलाफ बरवक्त कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मासूम और निहत्ते शहरियों की जान और माल को दहशतगर्दी के जरिए खतरे में डालने की भारतीय साजिश बेनकाब हो चुकी। हम भारत के पाकिस्तान में अमन और अमान को नुकसान पहुंचाने के मजमूम अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर आसिफ अली जरदारी ने दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के कौमी आज़म का इजहार करते हुए कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कामयाब कार्रवाइयाँ करना खुशाइंद है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कौमी असेंबली ने पाकिस्तान नेवी तरमीमी बिल 2025 और एक्सप्लोसिव तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली का इजलास स्पीकर सरदार अयाज सादिक की सदारत में हुआ। वफाकी वजीर खालिद हुसैन मक्सी ने कहा कि भारत पर पाकिस्तान की बड़ी फतह है। दुनिया ने देख लिया कि हम मुत्तहिद हैं और वतन का दिफा करना जानते हैं। वक्फे सवालात में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने ऐवान को बताया कि हुकूमत खेलों के फरोग और उनमें बेहतरी लाने के लिए इकदाम कर रही है। गुज़श्ता 3 साल में क्रिकेट के हवाले से बड़ी तादाद में मुल्क की टैलेंट हंट प्रोग्राम्स भी मुनाकिद किए गए हैं और बहुत जल्द क्रिकेट और दूसरे खेलों में पाकिस्तान को खोया हुआ मकाम दिलाएंगे। एक और सवाल के जवाब में वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि मुल्क की मईशत की बेहतरी में SIFC का बड़ा किरदार है। मुल्क में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल और सहूलियात फराहम की गई हैं, जिसकी वजह से मुल्क में बड़ी तादाद में फॉरेन फंडिंग आई है। तवज्जो दिलाओ नोटिस का जवाब देते हुए पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नेल्सन अजीम ने बताया कि इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए कैंसर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। वजीर आज़म की हिदायत पर इस मंसूबे के लिए 15 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। सेनेट के इजलास की बात करेंगे। आज मजमूई तौर पर सेनेट में 9 कानूनी बिल्स की मंजूरी दी, जिसमें ज्यादातर हुकूमत और अपोजिशन ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर किए। सेनेट इजलास की तफसील जानते हैं फैसल राव से। कायम मुकाम चेयरमैन सिदाल खान नासिर की सदारत में सेनेट इजलास कानून साजी के हवाले से इंतहाई मसरूफ रहा। ईवान में मजमूई तौर पर 9 कानूनी बिल्स पेश किए गए, जिनमें वफाकी दारुल हुकूमत की इंतजामी हदूद में कम उम्री की शादियों के रोकथाम से मुतालिक, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी कम उम्री में रिश्ता अज़दवाज के इम्तना से मुतालिक बिल सेनेटर शेरी रहमान ने पेश किया। JUI ने बिल की मुखालफत करते हुए इसे इस्लामी नजरियाती कौंसिल को भिजवाने का मुतालबा किया। ताहम ईवान की अक्सरियत ने बिल की मंजूरी के हक में वोट दिया।
कायम मुकाम चेयरमैन ने बिल पर सैर हासिल बहस के लिए मुतादिद सेनेटर्स को इज़हार ख्याल का मौका फराहम किया, जिन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सिवा तमाम इस्लामी मुल्कों में शादी की कानूनी उम्र 18 साल मुकर्रर है। दीगर मंजूर होने वाले बिल्स में एंटी रेप तहकीकात व मुकदमा एक्ट 2021, यूनिवर्सिटी ऑफ इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजी के क्याम के लिए कानून वज़ा करने का बिल, सूबाई मोटर गाड़ियों ऑर्डिनेंस 1965 में मजीद तरमीम का बिल, नेशनल हाईवेज सेफ्टी ऑर्डिनेंस 2000 में मजीद तरमीम का बिल, चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी अथॉरिटी एक्ट 2021 में मजीद तरमीम का बिल, पाकिस्तान नाम और निशानात इम्तना गैर मजाज इस्तेमाल एक्ट 1957 में मजीद तरमीम का बिल शामिल है। इनमें अक्सरियत बिल्स की हुकूमत और अपोजिशन ने मुतफिका मंजूरी दी, जिस पर वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने ऐवान में यकजहती और इत्तफाक के जज्बे को सराहा। तो मैं इस ऐवान को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज जितने लगन के साथ और जितनी तवज्जो के साथ लेजिस्लेटिव वर्क जो है वो हुआ, और इतना लंबा और भारी एजेंडा होने के बावजूद हमने ऐसे तरीके से इसको पैसेज में लेके गए, और कुछ ऐसे बिल भी पास हुए जो कि पिछले 5 से 7 साल से मुख्तलिफ वजूहात की वजह से पेंडिंग हो रहे थे। कायम मुकाम चेयरमैन सेनेट ने भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान अच्छी और मुस्बत फिजा को सराहते हुए कहा कि इस जज्बे को बरकरार रखने की जरूरत है। सेनेट इजलास जुमेरात 22 मई सुबह 10:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में सालाना ज़िले तरक्याती प्रोग्राम पेश किए गए। वज़ीर आला ने 12 अजला के सालाना तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी दी। तफसील बता रहे हैं मोहम्मद ताहिर कलासरा। मुसलसल 6 घंटे जारी रहने वाले खसूसी इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने हर जिला के तरक्याती प्रोग्राम का खुद जायजा लिया। इजलास में तमाम तहसीलों की सड़कों, मार्केटों और बाजारों की पायदार अपलिफ्टिंग और तजावजात के खात्मे का फैसला, जबकि हर शहर में मॉडल रक्षा स्टैंड बनाने और लैंड एक्विजिशन के लिए अराजी मुतासरीन को मार्केट रेट पर अदायगी का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला ने फैसलाबाद के लिए मजीद इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फराम करने और तारीखी घंटा घर के हर बाजार में बेहतरीन ब्यूटिफिकेशन की हिदायत की। रावलपिंडी राजा बाजार के अर्बन अपलिफ्टिंग के प्लान की मंजूरी और इसकी तारीखी उमरात की बहाली का फैसला भी किया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, तजावुज़ात का खात्मा और सफाई का मियार बरकरार रखना बहुत बड़ा चैलेंज है। बेहतर कारकर्दगी में हमारा मुकाबला किसी साबिक़ा हुकूमत से नहीं, खुद से है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि अवाम में रिलीफ का हकीकी एहसास ही कामयाबी है। उन्होंने कहा, करप्शन के खिलाफ जामे क्रैक डाउन करना होगा। इजलास में सरगोदा और साहिवाल में तजावुज़ात का खात्मा और साहिवाल के जनरल बस स्टैंड की मुंतकिली की मंजूरी दी गई, जबकि मुल्तान की 278 साल कदीमी मस्जिद वली मोहम्मद खां की बहाली और 22 बस स्टॉप बनाने की मंजूरी दी गई। इजलास में डीजी खां में वसी और स्पोर्ट्स एरिना प्रोजेक्ट की जल्द तकमील की हिदायत, जबकि बहावलपुर फरीद गेट की तामीर और तोसी और फूड स्ट्रीट के प्रोजेक्ट की मंजूरी दी गई। इस मौका पर वज़ीर आला को बताया गया कि सियालकोट में 17 किनाल पर सियालकोट फोर्ट, इकबाल मंजिल की तामीर और बहाली और बाब सियालकोट बनाया जाएगा। फैसलाबाद में 9.2 अरब की 6416 कनाल सरकारी अराजी वागजार कराई गई, जबकि गुजरावाला में 116 बाजार, सड़कें और 6566 मुस्तकिल तजावजात खत्म कर दी गई है। ताहिर कलासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी से कराची में एक्साइज के वजीर मुकेश कुमार चावला, पेट्रोलियम एंड सोशल डेवलपमेंट कमेटी गोटकी के चेयरमैन अब्दुल बारी पताफी और वजीर बल्दियात सईद गनी ने मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ अहम उमूर पर तबादला ख्याल हुआ और शहर कायद में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेश रफ्त का जायजा लिया गया। आलमी मीडिया ने पाकिस्तान और चीन के दिफाई ताउन को खित्ते में अस्करी तवाज़ुन तब्दील करने का सबब करार दिया है। रिपोर्ट कर रही हैं किंजा नकवी। बैनुल-अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि चीन के तैयार करदा जदीद हथियारों ने पाकिस्तान के हाथों अपनी पहली बड़ी जंगी आजमाइश कामयाबी के साथ मुकम्मल की। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी साख्ता J-10C जंगी तैयारों और PL-15 मिसाइलों ने भारतीय फजाइया के कई जंगी तैयारे मार गिराए, जबकि चीनी हथियारों के मुकाबले में अरबों डॉलर मालियत के भारतीय राफेल तैयारे अमली मैदान में बेअसर साबित हुए। रिपोर्ट में कहा गया है कि जदीद चीनी टेक्नोलॉजी से लेस पाकिस्तानी अफवाज ने न सिर्फ भारतीय
عسकरी मंसूबाबंदी को नाकाम बनाया, बल्कि हिकमत अमली से दुश्मन को दिफाई पोजीशन पर मजबूर किया। फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका के बड़े मीडिया इदारों ने चीनी टेक्नोलॉजी की बढ़तरी और पाकिस्तान की अस्करी कामयाबी का इतराफ करते हुए कहा है कि पाक चीन दिफाई ताउन का वाज़े मुजाहिरा हालिया पाक भारत कशीदगी में देखा गया, जबकि पाक चीन ताउन के सामने भारत बेबस दिखाई दिया। दिफाई माहिरीन के मुताबिक चीन से हासिल करदा एयर डिफेंस सिस्टम्स, ड्रोन, हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने पाकिस्तान को खित्ते में तकनीकी बढ़तरी दिलाई। चीनी इश्तराक से तैयार करदा पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों को भी आलमी सतह पर पजीराई हासिल है। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिपह सलार बरी फौज जनरल सैयद आसिम मुनीर, एडमिरल नवीद अशरफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद, इंतहाई काबिल एहतराम पाकिस्तान नेवी के चाको चौबंद और निडर बहादुर अफसरान और कौम के अजीम बेटे, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल ने कहा था, और इस जंग में मैं समझता हूँ कि ये इकबाल का शेर, इसमें पूरी दास्तान बयान है। इकबाल ने कहा था कि फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, फ़र्द कायम रब्ते मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरूने दरिया कुछ नहीं। ये जो पूरी कौम, पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी थी और खड़ी है, और अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम के साथ बरी फ़ौज, फ़ज़ाई और बहरी फ़ौज के दरमियान जो एक चोली दामन का साथ था, है और रहेगा, इसकी बदौलत अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को वो इज़्ज़त बख्शी जो तारीख़ में हमेशा सुनहरे हरूफ से याद रखी जाएगी। जिस तरीके से कौम के अजीम सपूतों और मेरी कौम की बेटियों हमारी बरी फौज ने दुश्मन के ठिकानों पर ठीक ठीक निशाने लगाए, अल-फतह मिसाइलों के ज़रिए और दूसरे फौजी हथियारों के ज़रिए, उसी तरीके से हमारी फ़ज़ाई फ़ौज ने दुश्मन के ठिकानों पर जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए उनको वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। और इसी तरीके से हमारी जो बहरी फ़ौज है, उनकी भी तैयारी वैसे ही थी जिस तरह बरी फ़ौज की और हमारी हवाई फ़ौज की। और मैं समझता हूँ कि 1965 में
جو دوارکا کا جو مارکا ہوا تھا وہاں پر جو آپ نے دشمن کو سبق سکھایا تھا اسی تیاری کے ساتھ آپ اس مرتبہ بھی تیار تھے کہ دوارکا کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، لیکن دشمن کو ہمت نہیں پڑی ہماری بحری فوج کی تیاری کو دیکھ کر، اور جس طرح ان کی پٹائی کی گئی بری فوج کے ہاتھوں اور فضائی فوج کے ہاتھوں، شاید وہ مزید پٹنے کے لیے اور مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ الحمدللہ کراچی پورٹ قاسم، کراچی شہر اور تمام ہماری جو یہاں پر تجارتی بحری ٹریفک ہے اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ تاریخ کا ایک قابل فخر یہ واقعہ ہے جس نے پاکستان کو پہلے بھی اور آئندہ کے لیے بھی ناقابل تسخیر بنا دیا ہے۔ میرے قوم کے عظیم سپوتوں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جذبہ ایمانی اللہ تعالیٰ پر، جو آپ کا ایمان، تقوی، اعتماد اس مالک جس کے قبضے میں ہماری جان ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسی مالک کا کرم، اس کی کمال مہربانی۔ میں اس موقع کے اوپر PNS مہران کے شہید لیفٹیننٹ یاسر کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر اپنی جان کی قربانی دی، مگر پاکستان کے وقار اور بحری اثاثوں کے اوپر آنچ نہیں آنے دی۔ یہ تمام غازی اور شہداء ہمارا پوری قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، اور ہم آپ کو، غازیوں کو، شہداء کو اور ان کے خاندانوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ میرے قوم کے عظیم بہادر بیٹوں اور بیٹیوں، بھارت کی حالیہ ناکام اور ہزیمت امیز مہم جوئی میں دنیا نے ایک بار پھر دیکھ لیا کہ ہماری بحریہ مکمل طور پر تیار تھی، بحری ہتھیار مقررہ پوزیشن پر نصب کر دیے گئے تھے، اور ہماری بحریہ ایک مرتبہ پھر دوارکا کی یادیں تازہ کرنے کے لیے تیار تھیں۔ بھارت کا فخریہ ایئر کرافٹ کیریئر وکرانت 400 نوٹیکل میل سے قریب آنے کی جرت نہ کر سکا۔ یہ بے مثال دفاعی حکمت عملی اور آپ کا غیر متزلزل عزم کی ایک زندہ مثال ہے۔ پوری قوم کو یقین تھا کہ اگر بھارت نے کسی بھی سطح پر بحری جارحیت کی غلطی کی تو اسے آپ اپنی فوری اور مؤثر کارروائی سے وہ سبق سکھائیں گے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے ایک سبق مل جائے کہ وہ دوبارہ پاکستان کی طرف بری نیت سے رخ نہ کر سکے۔ آپ کی یہ کامیابی افواج پاکستان کی مربوط حکمت عملی اور بالخصوص سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر کی بہترین کوآرڈینیشن کی مرہون منت ہے، جس نے پوری قوم کے عزم اور حوصلے کو نئی توانائی بخشی۔ میرے قوم کے عظیم غازیوں، بہادر افواج پاکستان کی ان کامیابیوں پر ہم سب اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور شکر سے سجدہ ریز ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اور اہم بات یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اس امتحان کے دوران ہماری بندرگاہیں مکمل طور پر فعال رہیں۔ کراچی
और बिन कासिम पर तजारती जहाज बिला तातुल आते जाते रहे, जबकि भारत के मगरबी साहिल पर तजारती सरगर्मियां मांद पड़ गईं। भारतीय नेवी, जो कि तादाद में हमसे 5 गुना बड़ी है, इस पूरी सूरत हाल में मुकम्मल तौर पर मफलूज दिखाई दी। राफेल जहाज़ों का हश्र देखकर उनका नाम निहाद विक्रांत मैदान जंग से यूं भागा कि पलटने का नाम तक न लिया। यानी हमारी शार्क्स ने हिंदुस्तानी वेल को मार भगाया। मेरे बहादुर बहरी मुहाफ़िज़ों, जिस तरह पाकिस्तान नेवी ने गुज़श्ता 15 बरसों में गैर मामूली तरक्की की है, इस पर मैं आप सबको दादे तहसीन पेश करना चाहता हूँ। मैं नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और आपकी पूरी टीम को सलाम पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और बैनुल-अक़वामी इश्तराक से पाकिस्तान नेवी की कारकर्दगी में बेपनाह इजाफा किया। आज हमारा दुश्मन खुद इस बात का एतराफ़ करता है कि पाकिस्तान नेवी ने खलीज फ़ारस, बहर अरब और बहर अहमर में ताकत का तवाज़न बदल कर रख दिया है। यह आप सबकी फ़तेह और पूरी कौम की फ़तेह है और मकाम फ़ख्र है। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, हम एक अमन पसंद कौम हैं और अपने तमाम तस्वीर तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं, लेकिन अगर हम पर जंग कभी दोबारा मुसल्लत की गई तो दुश्मन हमें हमेशा तैयार पाएगा। हम जारहाना अज़ाइम नहीं रखते, लेकिन हम अपने वतन अजीज़ के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ करना बहुत अच्छी तरह जानते हैं। पूरी कौम की जानिब से मैं अपनी बहादुर अफ़वाज पाकिस्तान और सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर बाबर और नेवल चीफ नवीद अशरफ और पूरी पाकिस्तान की अफसरों और जवानों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, दिल की अमीर गहराइयों से, जिन्होंने पाकिस्तान की बरी और फ़ज़ाई और बहरी सरहदों और बंदरगाहों की हिफाजत की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिला दिए। मैं ख़ितामन एक मरतबा फिर अपने उन तमाम बरादर ममालिक और दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे इस मुश्किल वक्त में वो न सिर्फ हमारा भरपूर साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया और पाकिस्तान के मौक़िफ़ की भरपूर तायद की कि अगर पाकिस्तान जो पहलगाम का अफसोसनाक वाक़या है उसके नतीजे में एक आलमी लेवल पर शफाफ तहकीक कराना चाहता है, तो हिंदुस्तान को इसमें क्या उसको एतराज़ है। उन्होंने पाकिस्तान का न सिर्फ भरपूर साथ दिया, हमारा हौसला बढ़ाया। मैं यहाँ पर एक मरतबा फिर अपने इंतहाई शफीक भाई सदर तैयब अर्दवान तुर्की का, जनाब हमारे इंतहाई बेहतरीन हम मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया, मोहम्मद बिन जायद सदर UAE और हमारे भाई इंतहाई शफीक भाई शेख तमीम अमीर ऑफ कतर, अज़रबाईजान के मेरे बहुत ही मोहतरम भाई इल्हाम, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपने दरीना दोस्त चीन का एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और याद रखें कि चीन वो हमारा एक पायदार दोस्त है जिसने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया,
یہ ہماری 77 سال کی تاریخ اس بات کی پکار کر گواہی دیتی ہے، اور چین نے آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے اور کل بھی رہے گا. مگر بات مکمل نہیں ہوتی اگر میں یہاں پر امریکہ کے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ انہوں نے یہ جو سلگتی آگ تھی جنگ کی، انہوں نے وقت پر بھاپا، اور دونوں ممالک نیوکلیر ممالک ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس، اور انہوں نے امن کی خاطر اور اس خطے میں امن کی خاطر انہوں نے بہت، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے بہت اس کے اوپر کام کیا دل جمی کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ، اور انہوں نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا. میں صدر ٹرمپ کا ایک مرتبہ پھر اپنی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حقیقتاً ایک اچھے خیر خواہ دوست کا کردار ادا کیا. اور یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ میں کشمیر کے حوالے سے بھی میں اپنا ایک مخلصانہ کردار ادا کرنا چاہتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ داستان ہے جس نے پاکستان کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی عظیم کردار، آپ کی جرأت، آپ کی بہادری کی بدولت پاکستان کو دنیا کے اس مقام پر دوبارہ لا کھڑا کیا ہے، جبکہ پوری دنیا چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے ایک دوبارہ پیرٹی ہندوستان کی اور پاکستان کی کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس مالک کا کرم، اس خدائے بزرگ برتر کی کمال مہربانی، سپہ سالاروں کی میں سمجھتا ہوں کہ زبردست اسٹریٹجی، ان کی ایک انسپائرنگ لیڈرشپ اور ان کے دلیرانہ فیصلے، حکومت پاکستان اور آرم فورسز کا ایک بالکل شیر و شکر ہونا، مکمل مشاورت اور ہم آہنگی اور ایک صفحے پر ہونا، اور جوانوں اور بیٹوں اور بیٹیوں کی عظیم، آپ کی عظیم ماشاءاللہ آپ کی کنٹریبیوشن، آپ کی بہادری، اللہ تعالیٰ پاکستان کو آج اس مقام پر لے آیا ہے کہ جب انشاءاللہ بہت جلد ہم معاشی میدان میں، سماجی میدان میں جب ہم ترقی کریں گے تو پھر اقوام عالم میں سبز ہلالی جھنڈے کی قدر ابھی ہونا شروع ہو چکی ہے. جو لوگ پاکستانی سبز پاسپورٹ لے کے جا رہے ہیں ان کو ایک نئی دنیا نظر آتی ہے، وہاں پر عزت سے ان کو پکارا جاتا ہے، ویلکم کیا جاتا ہے، خاص طور پر برادر ممالک میں اور دوست ممالک میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کے لیے ایک بہت عزت اور وقار کا دن ہے، اور اس کا ہم اللہ تعالیٰ کا اسی طریقے سے شکر ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے آگے جھکے رہیں اور اس سے عاجزی کے ساتھ اس کی مدد طلب کرتے رہیں. میں آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں آپ سے کہوں گا کہ میرے ساتھ نعرہ لگائیں، افواج پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان کی بحری فوج، پاکستان، قائد اعظم. ناظرین، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب. کشیدہ صورتحال میں پوری قوم سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی تھی. پاکستانی قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی تھی اور کھڑی ہے. بہادر افواج کے درمیان مربوط تعاون تاریخ کا سنہری باب ہے. بری فوج نے فتح میزائل اور دیگر ہتھیاروں سے دشمن کے ٹھکانوں پر درستگی سے نشانے لگائے. فضائیہ کے شاہینوں نے جدید ٹیکنالوجی سے دشمن کو سبق سکھایا. وزیر اعظم نے کہا کہ دشمن یہ سبق قیامت تک یاد رکھے گا. پاک بحریہ کی تیاری بھی مثالی تھی. پاکستان نیوی 1965 کی طرح دوارکا کی تاریخ دہرانے کے لیے تیار تھی. بحری جارحیت کرتا تو دشمن کو مزید رسوائی برداشت کرنا پڑتی. ہماری بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پاکستان نیوی ڈاک یارڈ میں افسروں اور جوانوں سے خطاب. کہا کہ بہادر افواج کے درمیان جو معرکہ ہوا ہے، معرکہ انہوں نے سر دیا ہے، ایک سنہری باب ہے. فضائیہ کی شاہینوں نے ملک و قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کشیدہ صورتحال کے دوران قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی مانند کھڑی رہی. پاکستانی قوم شانہ بشانہ کھڑی رہی ہے. دشمن کو جو سبق ہم نے سکھایا ہے وہ تا قیامت وہ یاد رکھے گا.
नाज़रीन, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल की बात करेंगे। भारतीय फोर्सेज ने अपनी जाबिराना कार्रवाइयां तेज करते हुए बड़े पैमाने पर छापों के दौरान मुतअद्दिद कश्मीरी नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक काबिज भारतीय फौज ने जिला पूंछ में 18 मुकामात पर छापे मारे। इस दौरान लोगों की डिजिटल डिवाइसेज जब्त कर ली गई। भारतीय पुलिस और रियासती तहकीकाती एजेंसी ने वादी कश्मीर में भी 11 मुकामात पर छापे मारे और कई नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने जिला राजौरी में मुहासिर तलाशी की कार्रवाई शुरू की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों पर जोर दिया है कि वो मकबूजा इलाके में भारतीय मजालिम और सियासी नाइंसाफियों के खिलाफ मुत्तहिद हो जाएं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से एक बयान में मकबूजा कश्मीर की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि भारतीय फौजियों ने छापों के दौरान हजारों कश्मीरियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि भारत झूठे प्रोपेगेंडे और जाबिराना इकदाम के जरिए न तो कश्मीरियों की आवाज़ को दबा सकता है और न ही आलमी बिरादरी को गुमराह कर सकता है। दूसरी जानिब मीर वारिस मौलवी मोहम्मद फारूक की 35वीं बरसी के मौके पर मनाए जाने वाले हफ्ते शहादत के सिलसिले में जामे मस्जिद श्रीनगर में मुकाबला हुस्न किरत मुनक्किद किया गया, जिसमें 30 से ज़ायद मदारिस के तलबा ने शिरकत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने तकरीब की सदारत की। देखो आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो, दम मस्त देखो, आज मेरा एक्स देखो, ऐसी मेरी वाइब देखो, कैसा मेरा फ्लेक्स देखो। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग के आखिरी ग्रुप मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को 252 रन का हदफ दे दिया। जवाब में कराची किंग्स की बैटिंग जारी है। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कराची किंग्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 251 रन बनाए। एलेक्स हेल्स और साहिबजादा फरहान ने टीम को 153 रन का आगाज फराहम किया। साहिबजादा फरहान ने 41 गेंदों पर 73 रन की इनिंग्स खेली। एलेक्स मिल्स ने 35 गेंदों का सामना करते हुए 88 रन बनाए, जिसमें 8 छक्के और 6 चौके शामिल थे। शादाब खान ने 19 गेंदों पर 42 रन की इनिंग्स खेली। मैच के दौरान छाती के सरतान से आगाही का दिन भी मनाया जा रहा है। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का प्ले ऑफ लाइन अप मुकम्मल हो गया। कोयटा ग्लैडिएटर्स, कराची किंग्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स ने प्ले ऑफ मरहले में जगह बना ली। पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान्स का पीएसएल के 10वें एडिशन में सफर खत्म हो गया। पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख में पेशावर ज़ल्मी पहली मर्तबा प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने में नाकाम रही। कोयटा ग्लैडिएटर्स क्वालिफायर में जगह बनाने में कामयाब हुई, जबकि लाहौर कलंदर्स पहला एलिमिनेटर खेलेगी। पाकिस्तान में अमेरिका की कायम मुकाम सफीर नेटली बेकर ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग का मैच देखा। कायम मुकाम अमेरिकी सफीर लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी का मैच देखकर भरपूर लुत्फानंदोज़ हुई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने नेटली बेकर से मुलाकात की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने स्टेडियम आमद पर कायम मुकाम अमेरिकी सफीर का शुक्रिया अदा किया। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने की तवक्को है। ताहम कश्मीर और गिरदनवाह में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात की जाए तो दादू, जैकबाबाद 48, लाड़काना, रोहड़ी और सिब्बी में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। अब आपको वापस लिए चलेंगे मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया कदीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।